In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Preeti. Good evening, Rahul. Good evening, Deepika Punya. And I hope you all are well. Fine. Great. Today, I am going to discuss a few topics that we have already discussed in previous class regarding enzymes, है ना? उसके बाद further हम next topic पे move करेंगे. That will be the expression of gene regulation at different level. ठीक है? तो you should wait for some time so that more of the child will come. कोई डाउट अगर है आपको पिछली टॉपिक से तो हम पहले उसको डिस्कस करें. एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट different kinds of process like Griffith experiment, Michelson-Stahl experiment. ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. Good evening, Simran. You are late today. 1 minute, I guess. 2 minutes late, according to my watch. तो सबसे पहले तो कुछ टॉपिक जो पीछे से हम लोगों ने डिस्कस किया था, and that was, I hope, enzymes used in replication. Am I right? The last topic we were discussing about the replication fork, है ना? Am I right? तो रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी करिएगा. आज इसको 2 टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है, इसको फिनिश करना है आज. जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें जो लास्ट टॉपिक है, दैट वाज आई गेस एंजाइम्स यूज्ड इन रेप्लिकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, है ना? ये डिस्कस किया था ना हम लोगों ने. राहुल, सिमरन, प्लीज रिस्पॉन्ड. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. आई थिंक यू मस्ट आंसर फास्ट. Okay, fine. Thank you, Simran.
सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। तो हम पहले तो उन एंजाइम्स के रोल और उनके फंक्शंस को डिस्कस कर लें। देखिए थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माय हैबिट पहले मैं थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट यू पीपल विल बी फैमिलियराइज विद द टॉपिक, है ना, क्योंकि एक टर्न ऑलरेडी गैप हो चुका होता है, तो आई होप कि आप लोग को ध्यान में नहीं होती है चीजें। तो हम एक एक करके रोल हम यूज करेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला, रोल ऑफ प्राइमर। आप में से कोई बताएगा मुझे फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर? ये मैंने पिछले टर्म में नहीं लिखा था, लेकिन आई होप कि आपने पढ़ा जरूर होगा। आप में से कोई? राहुल, हेलो कोमल, गुड इवनिंग। बी प्लीज बी ऑन टाइम टू अवॉइड एनी फर्दर प्रॉब्लम इन द टॉपिक। राहुल, क्या आप बता पाएंगे व्हाट इज प्राइमर? What is primer? Good evening, Abhishek, Smarty Mahalia, Mahala। देखिए टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। रोल ऑफ प्राइमर, तो प्राइमर है क्या? प्राइमर इज बेसिकली a short oligonucleotide chain. It is, लिखिए, it is short oligonucleotide chain that initiates the process of transcription. Process of transcription। अब हमने यहां लिखा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, कोई बताएगा इसके बारे में? आप में से कोई बताएगा मुझे? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड? राहुल को नहीं पता, मुझे पता था आपको नहीं पता। इसका आंसर किसी को पता है? व्हाट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड? एनी वन ऑफ यू? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, अभिषेक, कोमल, सिमरन, दीपिका, प्रीति। सिंगल नहीं बेटा, नो राहुल। एनीवन एल्स? देखिए हेजिटेट नहीं करना है, ठीक ना? दिस इज द ओनली वे through which you will able to learn or remember the topic for the long period. आप आंसर करेंगे whether it is right or wrong, that is all about your perception कि what you have been in your mind। तो अगर याद है it's better, अगर नहीं भी याद है तो keep trying, just indulge your brain to speak something। गलत होगा कोई बात नहीं, सही होगा you will be appreciated। गलत होगा और अगर हम उसको फिर करेक्ट करेंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। दिस इज द वे। मिस्टेक्स से ही बच्चे सीखते हैं, गलतियों से ही आप उससे सीखते हैं, है ना? तो डोंट बी हेजिटेट, स्पीक समथिंग। ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड इज देयर। ओलिगो का मतलब क्या है? दैट वी नीड टू फाइंड, है ना? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पे समझना है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो टिपिकल टर्म्स हैं जिसमें ओलिगो और पॉली का जो मतलब है वो है, ओलिगो मीन्स
देयर विल बी द 4 to 8 पेयर्स, 4 to 8 यूनिट्स। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में हैव 2 to 6, 2 to 7, 2 to 5, दैट ऑल डिपेंड्स, बट नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 6 और 7 के आसपास नहीं होती, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। गॉट इट एवरीवन? अब आई बात, काम क्या करता है प्राइमर, क्या करता है ना? तो प्राइमर का काम वही है जो हम लोग जब दही जमाते हैं, है ना, तो दही जमाने के लिए व्हाट वी परफॉर्म, व्हाट विल डू, हम लोग थोड़े से अमाउंट में दही, छोटा सा चम्मच या 1 चम्मच, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मिल्क यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द लैक्टोबैसिलस। तो उस दही जमाने के प्रोसेस में हम थोड़ा सा चम्मच भर, हाफ स्पून और समथिंग एल्स, हम उसमें दही डाल देते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इट डज, इट इनिशिएट और इट एक्टिवेट्स दोज बैक्टीरिया जो आपने उसमें रखा है टू मल्टीप्लाई, मतलब उसके नंबर्स को बढ़ाने में वो उसकी मदद करता है, और वही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता रहता है, मल्टीप्लाई करता है, एंड देन ऑल द मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, राइट? In the same way, primers are the small chain that will be bind or at the 3' end of the DNA sequence to initiate the process. मतलब पहला हम छोटा सा सीक्वेंस जो है वो प्राइमर्स अटैच कर देते हैं, और वही प्राइमर फर्दर पॉलीमराइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्राइमर अटैच नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा, जो रेप्लिकेशन है, सॉरी नॉट ट्रांसक्रिप्शन, वो हमारा इनिशिएट नहीं होगा। गॉट इट? गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, इट ये दिख रहा है ना आप लोग को ये कलर, इट इनिशिएट, ये गलत लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, सॉरी, it was not transcription, it was replication, ठीक है। make a correction please of replication initiates the process of replication। अब यहीं पे आ गया एक प्राइमर के बाद एंजाइम हो गया प्राइमेज। ठीक है, पहला एंजाइम प्राइमेज। तो ये करेगा, इट अलाउज बाइंडिंग ऑफ प्राइमर at 3' end of replication fork। अब डायग्राम देख लीजिए, ठीक, ये हमारा 3', ये 5', ये 3', ये 5'। अब यहीं पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए जो अभी हमारा डीएनए है, बिल्कुल छोटा सा खुला हुआ पार्ट है, ठीक, अभी डीएनए सिर्फ इतना ओपन है ना, फिर इतना ओपन है, पोजीशन हमारा सेम रहेगा। आज टेम्परेचर ज्यादा है तो दिमाग आज हमारा थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। अब प्राइमर का हैबिट है कि वो हमेशा कहां पे अटैच करेगा, 5' एंड पे। तो यहां पे एक छोटा सा प्राइमर अटैच हो गया, ठीक, लेकिन
इस स्ट्रैंड में प्राइमर कहां टच होगा, यहां पे ऐसे इस तरफ, ठीक। इधर रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इधर अब यहां तक जाएगा, फिर ये प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब ये कि ये प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का चलता जा रहा है, यहां पे हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया। पहले यहां तक खुला था तो ये इतना बना, फिर प्राइमर यहां अटैच हुआ, फिर इतना बना। ध्यान से समझिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ठीक ना। तो ये हो गया 5 to 3, ये हो गया 5 to 3। अभी इतना ही ओपन है, फिर खुलेगा। तो जैसे ये ओपन हो गया स्ट्रक्चर, फिर एक और मैं दिखा दूं आपको, तो आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक। 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश, इसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता रहेगा कॉपी का। डीएनए विल कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां एक स्ट्रैंड बना, फिर 2 स्ट्रैंड बना, फिर तीसरा स्ट्रैंड बना, है ना। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, है ना। अब इसका क्या मतलब हो गया, एक स्ट्रैंड हमारा क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये हमारा बन रहा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसका दूसरा नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये जापानीज साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये, इन्होंने पहली बार देखा था, एक्सप्लेन किया था। तो इसको जरा ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए जरा बेटा इसको आप लोग। कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, इसको भी हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, तो सो डोंट गेट ट्रबल, डोंट बी पैनिक, आई विल एक्सप्लेन इट। कॉपी कर लिया, जल्दी फिनिश करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करिए। विथ 4 और एंजाइम्स को एक्सप्लेन करना है, वी डिस्कस करेंगे 1 by 1। Have you completed? Copied. अभी 2-3 बच्चों का रिप्लाई नहीं आया। सिमरन, प्रीति, दीपिका, सिर्फ 2 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, दे हैव कॉपीड ओनली। अभिषेक और राहुल, बस प्लीज थोड़ा सा फास्ट लिखिए। आज का टॉपिक जो है एक ही दिन में खत्म करना है, तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। प्रीति डन, सिमरन डन, चलिए ओके फाइन। देखिए, और मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, अभी यहीं पे लिखेंगे हम दूसरा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट। और परेशान मत होइएगा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। It is
main enzyme used for polymerization of new DNA strand. पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया नई कॉपी बनाना, नए स्ट्रेंड्स को ग्रो कराना, डेवलप कराना. अब जरा इसको समझिए. आई होप यू हैव ऑल रिटन, है ना, लिख लिया होगा ना आप लोगों ने. अब समझिए इसमें कि था क्या क्या समझना है इसको जो मैंने अभी होल्ड पे रखा है. ओ मां, देखिए प्राइमेज का काम है प्राइमर को जोड़ना, मतलब वही छोटा सा थोड़ा सा दही जो हमने दूध में डाला और फिर प्रोसेस इनिशिएट हो गया. इन द सेम वे जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाले स्ट्रैंड पे, फिर से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे जुड़ता है, अटैच होता है. क्लियर. अब जब डीएनए ओपन हो रहा है तो अभी तो इतना ही खुला हुआ है डीएनए, तो ये प्रोसेस तो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का शुरू हो गया. मेन हमारा जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पे ही डिपेंड भी कर रहा है और डीएनए को ही पॉलीमराइज भी कर रहा है, मतलब डीएनए से एक नया स्ट्रैंड भी वही एंजाइम बना रहा है. तभी यहां नाम दिया इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक. अब इसका एक अपना नेचर है कि ये हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम एंड से ही शुरू करता है, मतलब इट विल ऑलवेज पॉलीमराइजेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मतलब ये उस टेम्पलेट डीएनए पे अटैच होगा जहां पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है. देख रहे हैं जो पेरेंटल है वो क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. पेरेंटल क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. अब इनका पॉलीमराइजेशन जो पॉलीमरेज एंजाइम करता है वो हमेशा 5 टू 3 करता है. ठीक. तो एक स्ट्रेन अब इतना खुला था, अब इतना खुल गया, तो इस स्ट्रेन में कंटिन्यूअस स्ट्रेन जिसको हम लोग कह रहे हैं ये डीएनए बनता चला जाएगा. लेकिन इस केस में चूंकि ये 3 टू 5 है, मतलब 5 टू 3 5 टू 3 इतना ही बना, अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये फ्रेगमेंट यहीं पे छोटा टुकड़ा रह जाएगा. फिर खुला तो ये तो टुकड़ा पहले से बना हुआ है, फिर से प्राइमर यहां अटैच हुआ और फिर से एक छोटा सा टुकड़ा बना. फिर ये खुला यहां तक पहुंचा, फिर प्राइमर अटैच हुआ, फिर छोटा सा टुकड़ा बना. इस केस में 5 टू 3 कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या होगा बनता चला जाएगा. अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का वहां पर छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में डीएनए के रेप्लिकेशन होंगे, जो टुकड़ा बनेगा. और दूसरे स्टेज में दूसरा केस में जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगी स्ट्रैंड की. यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? अब आई होप यू हैव ऑल क्लियर. समझ में आ गया क्या हुआ, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और क्यों एक स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस बनता है. क्लियर टू एवरीवन? used to form, used to form. ये डन? क्लियर? रिप्लाई करिए.
सेकेंड वाला रिपीट कर दीजिए। ओके ओके, कोई नहीं। देखिए समझना ये है आपको यहां कि जो डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम है, ये इंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, जैसे ही कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये डीएनए पॉलीमरेज अटैच किस पे होगा? 3 प्राइम पे, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही 5 प्राइम होएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड हमारा क्या है? कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन करता चला जाएगा, है ना? पॉलीमराइजेशन क्या करेगा? करता चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड पूरा का पूरा एक साथ तो ओपन हो नहीं सकता, ग्रेजुअली स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के फॉर्म में छोटे छोटे स्पेस में ये अनवाइंड करेगा, खुलेगा। जो काम है हमारा डीएनए हेलिकेज का, इसके बाद हम लिखेंगे। वैसे मिस्टेक हो गया हमारा, हेलिकेज पहले लिखना था मुझे। ठीक है, अब डीएनए पहले इतना खुला था, अब ये थोड़ा सा और ओपन हुआ, तो ये तो कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को कंटिन्यूअसली बनने की आदत है। अब आइए इस स्ट्रैंड पे, जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, मैं लिख दूं, ये लाइन भी छूट गया यहां। एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक ना? दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहां ये इतना ही मतलब बना, अब आगे तो कुछ है नहीं बन सकता, तो ये टुकड़ा यहीं पे इतना ही बन के रह जाएगा। फिर डीएनए खुला, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो ये एक स्ट्रैंड तो बन चुका है। अब ये वापस तो पीछे बन नहीं सकता ना, तो डीएनए पॉलीमरेज फिर से कहां अटैच होगा? यहां पे बाइंड करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं दोबारा, डीएनए पॉलीमरेज। अब जैसे ये बाइंड करेगा, फिर से ये प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, फिर छोटा टुकड़ा बनेगा, आगे अब कुछ है नहीं। फिर ये बड़ा हुआ, फिर वापस डीएनए पॉलीमरेज पीछे जुड़ेगा, फिर ये छोटा टुकड़ा बनेगा, लेकिन इधर क्या है? बड़ा टुकड़ा बनता रहेगा, डीएनए पॉली। मतलब एक तरफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, दूसरे तरफ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा, टुकड़ों के फॉर्म में बनेगा। बाद में वो डीएनए लाइगेज के हेल्प से, जो अभी हम लिखेंगे भी, नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, जो मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाता है, वो उस छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में ज्वाइन करके एक बड़ा सा डीएनए फ्रेगमेंट क्रिएट कर देगा। एंड इस तरह से हमारा एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी पूरी की पूरी कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगी, बन जाएगी, फॉर्म कर जाएगी। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? कोई डाउट किसी को? लिखिए, कोई डाउट हो फिर बताइए। Is it clear now? Simran, Rahul and Deepika. डीएनए पॉलीमरेज बेटा ज्वाइन नहीं होता है, आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा स्ट्रैंड है, ठीक है, एंड दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, राइट, है ना? ये डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 प्राइम पे जुड़ेगा और पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम to 3 प्राइम करेगा। ये अटैच हुआ और ये धीरे 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 क्या करेगा? ये मूव करता रहेगा। जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड ओपन होते चले जाएंगे, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। इस केस में तो ये हो रहा है, यहां पे क्या है? ये अटैच हुआ, बना, खत्म हो गया, फिर खुला, फिर अटैच हुआ, फिर बना, खत्म हो गया, फिर ओपन हुआ, अलग अलग स्टेज में। और इस तरह से हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कह रहे हैं,
कंप्लीट होता चला गया। एंड आई होप दिस इज ऑल, कि आपके दिमाग में अब किसी भी तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। एम आई राइट सिमरन, राहुल, दीपिका, प्रीति? इज इट क्लियर कंप्लीटली? स्पेशली सिमरन, डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट होता है क्या स्ट्रैंड पर? ये क्लियर हो गया? देखिए जैसे ही करेंगे ना, जुड़ना जुड़ता ही है, बट वी कांट से लाइक देयर इज अ फिजिकल एसोसिएशन। आई होप क्लियर हो गया सबको। इसके बाद लिखिए हेलिकेज। थर्ड लिखिए हेलिकेज। थर्ड में लिखेंगे हेलिकेज। लिखिए हेलिकेज के बारे में। एन एंजाइम ओहो, अच्छा चलिए कोई नहीं, दो इमेज में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। एन एंजाइम यूज टू ओपन द डीएनए कॉइल या डीएनए स्ट्रैंड। एन एंजाइम यूज टू ओपन ऑब्लिक अनवाइंड अनकॉइल द डीएनए स्ट्रैंड। It is used to unbind, uncoil, open the DNA strand. ठीक है, क्लियर? मतलब ये मैंने अभी पिछले टर्म में डिस्कस भी किया था कि ये हमारा अगर डीएनए है तो ये हेलिकेज जुड़ा, हेलिकेज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे, मुझे ये सबसे पहले लिखवाना था आपको, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। मैं एडमिट करते हैं इस चीज को। अब ये खुल गया पूरा, है ना, खुल गया, साथ ही ये कुछ इस तरह का कंडीशन डेवलप कर लेगा, ठीक ना। तो दिस इज द रोल ऑफ हेलिकेज एंजाइम, अनवाइंड द डीएनए, अनकॉइल द डीएनए, ओपन द डीएनए कॉइलिंग। गॉट इट? फिर नेक्स्ट है हमारा हेलिकेज के बाद टोपो आइसोमरेज, ये हमारा तीसरा था, है ना। फिर चौथा लिखिए टोपो, आप लोग को बड़ा साइज भी लिखना होता है ना मुझे, इस चक्कर में और दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं। टोपो आइसोमरेज, ये फोर्थ एंजाइम हो गया, ठीक है। टोपो आइसोमरेज, अब ये क्या करता है? तो इसका काम ये है कि जैसे ही डीएनए अनवाइंड हुआ, इसकी जो सुपर कॉइलिंग थी खुली, तो सुपर कॉइलिंग को वो प्रोटेक्ट करता है, उसको उसके स्ट्रेस को मेंटेन करके रखता है ताकि ये दोबारा बाइंड अप या कॉइल्ड ना हो। प्रिवेंट्स फ्रॉम recoiling एंड, ये मैंने शायद लिखवाया भी है आपको, एंड डिक्रीजेस द टेंशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, कॉपी करिए। कॉपी करिए। कॉपी कर लिया? इसके बाद लिखेंगे टोपो आइसोमरेज के बाद फिफ्थ वन गाइरेज।
इसमें लिखेंगे इट मेंटेन्स it maintains oblique decreases supercoiling stress. ठीक, सुपर कॉइलिंग स्ट्रेस को वो कम करता है। छठा हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको कहते हैं हम एसएसबी। ये क्या करता है कि जैसे ही डीएनए ओपन हुआ, रेप्लिकेशन फॉर्क बना, जिस तरह ढलान पे हम पत्थर रख देते हैं टायर के नीचे कि दोबारा ये गाड़ी नीचे की तरफ ना ढूल जाए, तो लगभग वही कंडीशन हम यहां भी मेंटेन करते हैं। ये एसएसबी प्रोटीन यहां अटैच हो जाएगा ताकि ये दोबारा से फिर से ये फ्रेगमेंट जो हो जुड़ ना जाए, अटैच ना हो जाए। तो इसका काम हो गया prevents recoiling। And the last one is सातवां ligase, most important, second most important one। पहला तो था पॉलीमरेज, दूसरा हमारा यही है। ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। इट joins the short DNA fragments, short DNA fragments। ठीक है, डन। अच्छा, एक और नोट में लिखिएगा इसी के, पहले इसको कॉपी करिए, देन आई विल एक्सप्लेन टू इट। लिख लिया सबने? हो जाए फिर बताइए। एंड आई गेस इसमें अब कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर यू आर जस्ट आस्क। समझ में आ गया सब लोगों को ये सातों एंजाइम्स के बारे में? हो गया, क्लियर है? सिमरन, दीपिका, राहुल, प्रीति,
and Abhishek. Is it all clear? आप लोग नोटेड लिख देते हैं, फिर नोटेड का मतलब हम ये मान के चलें फिर अगली बार से आप लोगों को समझ में भी आ गया। ओके, वेरी गुड। नोट में लिखिए, इसके बाद नोट में लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो, नोट करके लिखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो responsible for proofreading. DNA polymerase also responsible for proofreading. अब इसका क्या मतलब है? What do you mean by proofreading? प्रूफ रीडिंग का मतलब हो गया कि अगर किसी भी तरह का मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक को डीएनए पॉलीमरेज बाय यूजिंग एटीपी मिसमैचिंग पेयर को, है ना, उसको डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा? सही कर देगा। उसके मिस्टेक को वो रेक्टिफाई कर देगा। क्या करेगा? रेक्टिफाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? पक्का? आगे बढ़े। तो आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स, एक स्ट्रैंड जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, दूसरा स्ट्रैंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, एंड दैट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एंड दैट ऑल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फर्दर ज्वाइंड टुगेदर बाय द यूज ऑफ विच एंजाइम? कौन बताएगा? ओ, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया ध्यान में। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट? एनी वन ऑफ यू? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर joining short fragment, that is Okazaki fragment? Any one of you? वेरी गुड, सिमरन एंड दीपिका। लाइगेज, डीएनए लाइगेज भी कह सकते हैं हम आप इसको, है ना, डीएनए लाइगेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। लिखेंगे इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन बोथ prokaryotes and
eukaryotes, this process is 90% same one additional step occurs in eukaryotic cell is post transcriptional modification. अब एक शॉर्ट में देखिए, इन प्रोकैरियोट्स जो डीएनए है हमारा वो डायरेक्टली एमआरएनए बनाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए पहले एचएनआरएनए बनाता है एंड देन इट फॉर्म्स एमआरएनए। जो हमारा प्रोकैरियोटिक आरएनए है इसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए कहते हैं, और जो हमारा यूकैरियोट में है इसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए कहते हैं। This hnRNA is also called heteronuclear RNA, या इसी को हम soluble RNA भी कहते हैं। अब यहां पे एक लाइन आपको ऐड करना है, नीचे लिखेंगे hnRNA is converted into mRNA by the process of splicing. Next point. In eukaryotic cell, non-functional gene sequence, जिसको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, नॉन फंक्शनल जीन सीक्वेंस ब्रैकेट में इंट्रॉन आर प्रेजेंट that makes it monocistronic. फिर लिखेंगे splicing involve removal of intron from hnRNA to convert
into mRNA। कॉपी करिए, फिर हम आगे डिस्कस करें। ये है हमारा मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए, ये है हमारा पॉलीस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो प्रीति, अभिषेक, सिमरन, एंड आई होप इट, मतलब यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इसमें कोई डाउट किसी को? देखिए, जो डाउट हो बिल्कुल अभी पूछ लीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाएगा तो आप फिर भूल जाएंगे, फिर मुझे दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा को समझना पड़ेगा, और फिर वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ये भी बता दूं। इट इज कंप्लीटली न्यू, इसका कोई भी रिलेवेंट चीजें जो 11th से या किसी और क्लास से नहीं आई हैं। इट इज फुली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड टॉपिक, जो बिल्कुल नया है। तो आई होप कि आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं बचा रहना चाहिए। जो भी है आप जस्ट पूछ लीजिए। राहुल डन डनाडन, ठीक है भैया, वेरी गुड। सिमरन, अभी मैं डिस्कस करूंगा इंट्रॉन के बारे में, है ना, डोंट वरी। चलिए, लिखिए, नोट में ही चलेंगे, अभी नोट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में नोट में लिखेंगे सिस्ट्रॉन आर सिस्ट्रॉन आर segment of RNA that code for polypeptide chain. Cistron are part of RNA that code for polypeptide chain. That code for polypeptide chain. ब्रैकेट में कोडिंग सीक्वेंस, मतलब जो एक मैसेज कवर कर रहा है, एक मैसेज गवर्न कर रहा है, इसीलिए हम उसको कोडिंग सीक्वेंस कह रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द सिस्ट्रोन। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। Introns are non-coding sequence. Introns are non-coding sequence, comma, does not code for
does not code for any information, does not code for any information. Done? सिमरन अभी हम इसको पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग वाला टॉपिक इसके बाद का ही टॉपिक है. देयर वी विल डिस्कस पॉली एडिनाइलेशन, कैपिंग एंड टेलिंग, है ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, जीपीपी अटैच होता है, कैसे निकलेगा. अभी जस्ट इस टॉपिक को हम, आई होप, कितना मिनट बचा है अभी है आधा घंटा, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट उसको खत्म करेंगे, परेशान मत होइए. तो ये समझ में आ गया, इंट्रॉन सिस्ट्रॉन समझ में आ गया. फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में रेकॉन. रेकॉन ये भी पाया जाता है, रेकॉन, RECON. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूलर लेवल का है ये. रेकॉन इज जीन सीक्वेंस. रेकॉन इज जीन सीक्वेंस responsible for recombination. फिर लिखेंगे नेक्स्ट, ये थोड़ा हाई लेवल का है, म्यूटॉन. ये आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर बायो की बुक में. म्यूटॉन इज gene sequence responsible for mutation. अब लिखेंगे हेडिंग steps involved in splicing. अब इसमें है क्या, तो इसमें है हमारा इट इन्वॉल्व्स कैपिंग, कॉमा, पॉलीएडिनाइलेशन एंड टेलिंग. एनसीईआरटी बुक में आपको डायग्राम मिलेगा, देखिएगा अगर ध्यान से. तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मैसेंजर आरएनए है ना, या HNRNA, नॉट मैसेंजर आरएनए. डायग्राम से ही समझा देता हूं मैं आपको, आई होप कि इससे समझ में आएगा. 3 प्राइम 5 प्राइम. ये देखिए हमारा है इंट्रॉन, ब्लू वाला है ना, और ये हो गया एक्सॉन ई वाला, ब्लैक वाला, है ना. मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सॉन आई इंट्रॉन. ठीक है, ये है हमारा HNRNA. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3rd प्राइम एंड में, अब मैं कलरफुल नहीं कर रहा हूं, इट विल, चाहे मैं कर दूं भाई, आप लोग गड़बड़ कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे. एक दो 3 4, तो 1
2 3 4। देखिए क्या हुआ, ये हमारा HNRNA है, एक्सॉन मतलब कई सारे इंट्रॉन्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो है, जो एक्सॉन इज दैट। अब यहां पे एक लाइन रह गया है, देखिए एक लाइन लिख लीजिए, कहीं भी स्पेस जहां मिले लिख लीजिएगा, एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन। यही वो सीक्वेंस है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। अब इसमें कई सारे एक्सॉन्स जो है वो बीच बीच में इंटरप्टेड हैं इंट्रॉन से। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ड्रॉ करिए डायग्राम। मतलब एक सीक्वेंस जो जीन का है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन करके कई सारे इंटरप्शन है इंट्रॉन्स के, जो इन मीनवाइल उसके मैसेज को रोक रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। ये वही बात हो गई कि इंग्लिश में अगर आप वर्ब गायब कर दीजिए तो उस लाइन की, उस स्टेटमेंट की कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, एंड इट विल बी सेड टू बी एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है कि बीच बीच में इंट्रॉन्स जुड़ा हुआ है, और इंट्रॉन्स के जुड़े होने के कारण ही हम इसको क्या कह रहे हैं, HNRNA कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, एक एंड पे ग्वानोसिन पायरोफॉस्फेट, ग्वानोसिन पायरोफॉस्फेट GPP अटैच हो गया, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, उसी को हम टेलिंग भी कह देते हैं, पॉली एडिनाइलेशन भी कह देते हैं। तो देखिएंगे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसमें पॉली एडिनाइलेशन मतलब कई सारे एडेनिन के रेसिड्यूज जुड़ जाते हैं। यहां हमारा GPP है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जो अब जरा इन तीनों स्टेप को समझिए, पहले कॉपी करिए, फिर नहीं तो दिक्कत होगी आपको समझने में। ड्रॉ करिए, हो जाए तो बता दीजिएगा।
यहां क्या हुआ अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले लिख लीजिए, नहीं होएगी समझ में नहीं आएगा फिर। ये दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, ब्लैक और ब्लू पैटर्न है, इंट्रॉन है ब्लू वाला, ब्लैक वाला जो एक्सॉन है। रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। ओके डन। अब समझिए क्या हुआ इसमें, जितने इंट्रॉन्स थे, अब ब्लू से लिख दिया, मैं इरेज नहीं करूंगा, है ना, इट विल टेक टाइम, समझना है बस आपको। एक्सॉन है एंड इंट्रॉन है। इन दो स्टेप्स में कैपिंग हो गया, पॉली एडिनाइलेशन हो गया, दोनों तरफ से देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड, प्रेशर कर रहा है, एंड सिंस दैट इंट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड जीन सीक्वेंसेस व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग एल्स, तो जब दोनों की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट होगा तो व्हाट हैपन, बाय द सर्कुलराइजेशन इंट्रॉन्स जो है वो बल्ज आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा एक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। सर्कुलराइजेशन, सर्कुलराइजेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर इंट्रॉन्स, ठीक है। और फिर ये इंट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एंड वी हैव mRNA प्लस इंट्रॉन्स, and this is the step of what, splicing, and I hope it is all clear। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट किसी को? सर्कुलराइजेशन मतलब इंट्रॉन्स को पॉली एडिनाइल, मतलब यहां पे एडिनोसिन है, ये ए के बहुत सारे रेसिड्यूज जुड़ जाते हैं जिससे एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है 5 प्राइम एंड पे, और जीपीपी पार्टिकल जो होती है वो बहुत तेज खींचती है प्रेशर के साथ। इससे क्या हुआ, इंट्रॉन्स पुश हो गया बाहर की तरफ, धकेल दिया गया कि तुम हटो यहां से, कुर्सी पर से धकेल के हटा देना, एक तरह से आप कह सकते हो, और ये सभी इंट्रॉन्स आपस में रिमूव हो गए, और जितने भी एक्सॉन थे ई वो आपस में क्या हो गए, सारे के सारे एक्सॉन्स जो थे वो आपस में जुड़ गए, एंड देन इट फॉर्म्स अ मैसेंजर आरएनए। ये सारे के सारे एक्सॉन ई ये सब जो थे वो आपस में क्या हो गए, ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, आपस में जुड़ गए, अटैच हो गए, एंड इट बिकम व्हाट, मैसेंजर आरएनए। तो दिस इज अबाउट स्प्लाइसिंग। इसमें कोई डाउट किसी को?
Any doubt to anyone else? You may ask your doubt. कुछ पूछना है किसी को? दीपिका, सिमरन, राहुल, अभिषेक, प्रीति. I am waiting. कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को भी? I for intron, E for exon. Intron is a non-coding sequence. Exon is a coding sequence that carries the information. Introns always interrupted in the eukaryotic cells to make it monocystonic. ठीक है? And this is what the property of the messenger RNA that have a monocystonic. मतलब एक ही सीक्वेंस होंगी जो सारे के सारे काम को परफॉर्म करेंगे. मतलब एक मल्टी टैलेंटेड हो गया जो सारी चीजों को ग्रेजुअली इन्फॉर्म करेगा, बिकॉज दे हैव अ ट्रिपलेट कोडॉन जो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं. तो ऑब्वियसली एवरी ट्रिपलेट कोडॉन हैव सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. दैट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? एक ही सब कुछ कर लेगा. प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है. पॉलीसिस्टोनिक है, वो सबके लिए अलग अलग है, सब अलग अलग ढंग से मैसेज को इन्फॉर्म करेगा, कैरी आउट करेगा. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक सीक्वेंसेस, या आरएनए भी आप कह लेते हो. चलिए, वेरी गुड. सिमरन क्लियर, दीपिका क्लियर, राहुल क्लियर. अब इसके आगे देखें. इरेज कर देना. ये कॉपी कर लिया ना, सर्कुलराइजेशन इंट्रॉन्स, ये मैंने बाद में ऐड किया है, इसको मत छोड़िएगा. दिस पार्ट आई हैव शोन हियर द ऑल एक्सॉन्स जॉइंस टुगेदर बाय द after the process of removal of introns. Introns are here. ठीक, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए. तब तक मैं इधर इरेज करता हूं इसको. देखिए, बायो, आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका बायो इतना बेहतर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और डबल. मतलब आपके पास इतने सवाल होने चाहिए जिस तरह से सिमरन के पास सवाल होते हैं. जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास डाउट अपने आप आएगा, है ना. आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. अब जरा हमें अब बताइए कि which polymerase enzyme is responsible for फॉर्मेशन ऑफ mRNA. कौन सा एंजाइम, मतलब कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम mRNA बनाता है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये मैंने बहुत पहले या दूसरे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इसको. कोई बताएगा? आई एम वेटिंग. विच पॉलीमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA.
प्रीति, राहुल, दीपिका, सिमरन, अभिषेक। बताइए, विच एंजाइम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एमआरएनए। देखिए, तीनों आरएनए के लिए अलग अलग एंजाइम है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है पहले भी, तो आप होप कि तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, बहुत जरूरी है, रिवीजन भी। एंड आई एम वेटिंग, डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर आंसर। नो, नन ऑफ यू, आप में से कोई नहीं। प्रीति, आई होप यू शुड आंसर। सिमरन, दीपिका, प्रीति, राहुल, अभिषेक। बिल्कुल नहीं। ओ माय गॉड, ये आवाज आ रही ना आप लोगों को? भूल गए क्या? 3 एंजाइम्स थे। सबके सब भूल गए। बादाम खाइए, बादाम, ऐसे काम नहीं चलेगा। कागजी बादाम खाइए, ऐसा सुना है, उससे मेमोरी शार्प होती है, चीजें याद रहती हैं। सिमरन, योर आंसर इज स्टिल वेटिंग। अभिषेक, क्या हो गया बेटा, तुम तो मेहनत कर रहे थे। लिखिए, लिख लीजिए, ये लिख के अगर याद लिखा है तो सब भूल जाते हैं आप लोग। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब अगर ये टाइप 1 है, 1, तो ये एमआरएनए बनाएगा, याद आ रहा है? यही अगर टाइप 2 है, नहीं सॉरी, 1 वाला आरआरएनए बनाता है, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, एमआरएनए। और अगर ये टाइप 3 है तो ये टीआरएनए बनाएगा। याद आ गया? ये मैंने आपको लिखवाया है कई बार, कॉपी करिए। अब हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट में, हेडिंग लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। पहला, इनिशिएशन, दूसरा elongation,
and third one termination. इनिशिएशन में लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज binds at initiation site to start the process. दिख रहा है ना, छूट तो नहीं रहा लास्ट वाला वर्ड प्रोसेस. हाँ ठीक है. ठीक है. अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होके, व्हाट हैपेन, इट स्टार्ट्स टू पॉलीमराइज द एमआरएनए. एलोंगेशन मतलब एमआरएनए विल स्टार्ट्स टू मूव, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स टू मूव टू elongate the formation of messenger RNA. ये तब तक चलता रहेगा इनिशिएशन जब तक कि वो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे ना पहुंच जाए. टर्मिनेटर रीजन का मतलब हो गया एक वो पार्ट जहां पे रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, उसको वहां से डीअटैच करेगा. ठीक है, तो लिखेंगे इसमें mRNA starts to produce by polymerization. By polymerization with the help of ब्रैकेट में सिग्मा फैक्टर, with the help of sigma factor, as RNA polymerase reaches at terminator region row factor deattaches RNA polymerase and stops the process of ट्रांसक्रिप्शन. रो फैक्टर को हम टर्मिनेटिंग फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, इसको लिखिए. इसके बाद आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी से इमेज जो है हमारा उसको कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, एनसीईआरटी में जो इमेज है उसको इसी के जस्ट नीचे कॉपी कर लीजिएगा. कॉपी करिए फिर इसको. आज भी कुछ ज्यादा ही ह्यूमिडिटी है.
कॉपी कर लिया? देखिए इसमें सिमरन ट्रांसक्रिप्शन में हो गया हमारा इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसमें ये तीन चीजें हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक, जैसे ही बाइंड करेगा इट विल इनिशिएट द प्रोसेस। ठीक, ये तब तक इनिशिएशन चलती रहेगी जब तक कि मैसेंजर आरएनए नहीं बनता रहेगा, और ये जब तक बनता रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनल पार्ट पे पहुंचेगा, टर्मिनेटर रीजन पे, जहां पे कोई भी कोडिंग सीक्वेंस नहीं होंगी, जहां पे सारे सीक्वेंस जो होंगे वो नॉन सीक्वेंसेस होंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होंगे। एट द सेम टाइम अ फैक्टर जिसको हम लोग रो फैक्टर कहते हैं वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। वो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ही बाइंड करेगा उसको, पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा वो, एंड इट लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन मेथड। और जब आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा उस रिंग से रो फैक्टर के कारण, तो जितने भी मैसेंजर आरएनए उस समय तक बने होंगे वो फिर फर्दर वहां से रिमूव हो जाएगा, एंड इट विल प्रोड्यूसेस द कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए। ठीक है, डन। सिमरन, दीपिका, प्रीति, राहुल, एनी डाउट? ये समझ में आ गया? अब कोई कंफ्यूजन है? इसके डायग्राम को कॉपी कर लीजिएगा बुक से, एनसीईआरटी बुक से, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो ये हमें अगले टर्म में फिर से बताइएगा, मुझे इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने वाले, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा सिमरन। इजंट? चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ तो नहीं रह गया कहीं से, कोई भी कंफ्यूजन? वेरी गुड, दीपिका क्लियर, सिमरन क्लियर, राहुल, प्रीति, वेर इज प्रीति? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, एनसीईआरटी से, फिर हम थोड़ा सा फिर से इसको हम रिवाइज करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप द थिंग विल बी डन। ओके देन, गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।